بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ آئی ایس کے چنگل سے فرار یزیدی لڑکی نادیہ مراد اور ریپ وکٹمز کا علاج کرنے والے کانگو کے ڈاکٹر کو امن کا نوبیل انعام۔ نادیہ مراد ہزاروں یزیدیوں کے قتل عام کی گواہ۔ آئی ایس ملیٹنٹس نے کئی بار بیچا خریدا، رہائی کے بعد دنیا بھر میں زیادتی کا شکار لڑکیوں کے لیے کام کیا۔ ہندوستان رشیا سے $5 بلین کا S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم خریدے گا۔ امریکہ کی دھمکیاں نظر انداز، مودی اور پوٹین کی موجودگی میں سمجھوتے پر دستخط۔ مودی اور پوٹین نے عالمی صورتحال پر بات چیت کی۔ ہندوستان امریکی پابندیوں کے باوجود ایران سے تیل خریدے گا۔ ٹرمپ بار بار سعودیوں کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کے بیان پر ایران کا تبصرہ، کہا مضبوط مڈل ایسٹ کے لیے ریاض کے ساتھ مل کر کام کرنے تیار ہیں۔ سعودی عرب کی کمپنی آرام کو پاکستان کے گوادر میں آئل ریفائنری بنائے گی۔ منصوبے کو اسلام آباد کی منظوری، روزانہ 5 لاکھ بیرل تیل نکالنے کا منصوبہ۔ نواز شریف کے بھائی شہباز شریف کو کرپشن کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 74 کے نشان کو پار کر گیا۔ بامبے اسٹاک ایکسچینج میں بھاری گراوٹ۔ ہندوستان کے پہاڑ جیسے سکور کے جواب میں ویسٹ انڈیز نے 94 پر 6 وکٹ کھو دیے۔ کوہلی اور جڈیجا کی سینچریاں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ اس سال کا امن کا نوبیل انعام زیادتی کا شکار ایک عراقی یزیدی لڑکی نادیہ مراد کو مشترکہ طور پر دیا گیا ہے۔ نادیہ کے ساتھ افریقہ کے ملک کانگو کے ایک ڈاکٹر میک وچ کو بھی یہ ایوارڈ دیا گیا۔ نادیہ مراد کو اس سے پہلے یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے انسانی اسمگلنگ سے متاثرہ لوگوں کے بارے میں ایمبیسڈر مقرر کیا گیا تھا۔ نادیہ مراد کو یورپ کے سب سے بڑے ایوارڈ سخاروف سے بھی نوازا گیا۔ سخاروف ایوارڈ ایک سوویت سائنٹسٹ اور سوویت یونین کے باغی اندری سخاروف کی یاد میں دیا جاتا ہے۔ نادیہ مراد عراق کی یزیدی لڑکی ہیں جن کا آئی ایس ملیٹنٹس نے اغوا کیا تھا اور ریپ کیا تھا۔ نادیہ نے آئی ایس ملیٹنٹس کے چنگل سے فرار ہونے کے بعد یزیدی لوگوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف دنیا بھر میں آواز اٹھائی تھی۔ نادیہ کے ساتھ جس ڈاکٹر کو ایوارڈ دیا گیا وہ ایک گائنیکولوجسٹ ہیں جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہزاروں عورتوں اور لڑکیوں کا علاج کیا۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں نوبیل کمیٹی کی چیف نے ایک بیان میں کہا کہ یہ انعام جنگی ہتھیار کے طور پر جنسی تشدد کو استعمال کرنے کے خلاف جدوجہد کے لیے دیا گیا ہے۔ اس موقع پر امن کا نوبیل انعام حاصل کرنے والی پاکستانی لڑکی ملالہ یوسفزئی نے نادیہ مراد کو مبارکباد دی۔ ملالہ نے ایک بیان میں کہا کہ ان کے کام نے کئی زندگیاں بچائی ہیں اور عورتوں کو جنسی تشدد کے خلاف زبان کھولنے میں مدد دی ہے اور حوصلہ پیدا کیا ہے۔ نادیہ مراد نومبر 2016 میں آئی ایس کی قید سے آزاد ہوئی تھیں۔ وہ 1993 میں عراق کے سنجار علاقے کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئی تھیں۔ 2014 میں آئی ایس ملیٹنٹس نے ان کے گاؤں پر حملہ بول دیا تھا۔ اس کارروائی میں ان کے خاندان کو ختم کر دیا گیا تھا اور ان کے خاندان کی کئی لڑکیوں کو باندیاں بنا کر ملیٹنٹس میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ نادیہ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آئی ایس ملیٹنٹس نے جس دن حملہ کیا تھا اس دن 5000 یزیدی مردوں کا قتل کیا گیا تھا اور 6500 عورتوں اور بچوں کا اغوا کیا گیا تھا۔ ایک مسلمان خاندان نے نادیہ کو آئی ایس کے چنگل سے فرار کرانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ نادیہ نے ایک انٹرویو میں BBC کو بتایا تھا کہ آئی ایس نے انہیں کئی بار بیچا اور خریدا۔
नोबेल कमेटी के ओहदेदारों ने कहा है कि अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाले दोनों ने बड़े हौसले और बहादुरी के साथ जंगी जराइम का मुकाबला किया और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जानों को जोखिम में डालकर काम किया। यूरोपियन काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क ने इनाम हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी और उनके हौसले, उनकी इंसानियत और रहमदिली की तारीफ की, जिसका मुजाहरा उन्होंने अपनी रोजाना लड़ी जाने वाली लड़ाई के दौरान किया। इराक में यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने कहा कि नादिया मुराद ने इंतहाई बहादुरी और जोश और जज्बे का मुजाहरा किया और ये अवार्ड उन तमाम यजीदियों और दूसरे इराकियों के लिए है जिन्होंने आईएस के हाथों काफ़ी तकलीफें उठाई हैं। बगदाद में अमरीका के सफारत खाने ने भी नादिया मुराद को मुबारकबाद दी। यजीदी एक कुर्द माइनॉरिटी ग्रुप है जिसका ताल्लुक एक बहुत पुराने मजहबी तबके से है जो इब्राहिमी मजाहिब, इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत और पारसी मजहब की तालीमात पर अमल करता है। ये ग्रुप एक खुदा को मानता है। कांगो के जिस गायनकोलॉजिस्ट को अमन के नोबेल इनाम के लिए चुना गया वो अफ्रीकी मुल्क में जिनसी तशद्दुद से मुतासरा लड़कियों और औरतों का इलाज करते हैं। उन्होंने 1999 में कांगो में अपना हॉस्पिटल खोला जहां हर साल हजारों लड़कियों और औरतों का इलाज होता है। उनमें से कई लड़कियों और औरतों का जिनसी तशद्दुद के बाद इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उनका मुल्क सीरिया में इलेक्शंस तक अपने सिपाहियों को वहां से नहीं बुलाएगा। तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल में एक आलमी फोरम से खिताब करते हुए कहा कि जब कभी सीरिया के अवाम इलेक्शंस करेंगे हम सीरिया को छोड़ देंगे और सीरिया को उसके मालिकों के हवाले कर देंगे। तुर्की ने अगस्त 2016 में सीरिया में अपने सिपाहियों को भेजा था ताकि सरहदी इलाकों में आईएस मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन किया जा सके। बाद में उसने इसी साल के शुरू में अफरीन शहर में कुर्दों की फौज YPG के खिलाफ एक ऑपरेशन किया। तैयब एर्दोगान ने पिछले महीने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ एक समझौता किया जिसके तहत इदलिब में सीरियन फौज का ऑपरेशन टाला गया। अमेरिका के साबिक वजीर दिफा चैक हेगल ने कहा है कि सीरिया में तैनात अमेरिकी सिपाही सीरिया से ईरानी फोर्सेस को बाहर नहीं निकाल सकते। हेगल ने सीरिया से ईरानी सिपाहियों को निकालने के लिए अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन के मुतालबे को रद्द करते हुए कहा कि आधे से ज्यादा सीरिया पर अमेरिका का कंट्रोल नहीं है। वहां 2000 अमेरिकी सिपाही एक कोने में तैनात हैं। आप इन 2000 अमेरिकी सिपाहियों के साथ सीरिया से ईरानियों को बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी है। उन्होंने एक डिफेंस मैगजीन से बातचीत करते हुए ये बात कही। एक रिपोर्ट में कहा गया कि यमन के हुदैदा में अल-हुसियों ने एक मेडिकल सेंटर पर हमला कर दिया। अरब मीडिया में यह बात कही गई। इस हमले में जानी नुकसान के बारे में फौरी तौर पर कोई खबर नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की एक तहकीकाती टीम ने सऊदी अरब और UAE पर इल्जाम लगाया है कि वो यमन में उसके काम में रुकावट डाल रहे हैं। अल जजीरा से बातचीत करते हुए UN टीम के रुकन कामिल जंदूबी ने कहा कि उन्हें ऐसे गैर पेशावराना रवैये की उम्मीद नहीं है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि ईरान सऊदी अरब के साथ मिलकर एक मजबूत मिडल ईस्ट बनाने के लिए तैयार है और वो चाहता है कि अमेरिका की तरफ से इलाकाई मुल्कों की बेइज्जती का सिलसिला खत्म हो। जवाद ज़रीफ ने ट्विटर पर कहा कि सदर ट्रंप बार बार ये कहते हुए सऊदियों की बेइज्जती कर रहे हैं कि वो उनकी मदद के बगैर 2 हफ्तों तक नहीं टिक सकते। ईरान के वज़ीर ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि किसी की सिक्योरिटी को आउटसोर्स किया जाए। हम एक बार फिर अपने पड़ोसियों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। आइए हम सब मिलकर एक मजबूत इलाके को बनाएं और इस तौहीन को खत्म करें। हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली से खिताब करते हुए कहा था कि सऊदी अरब और उसके बादशाह शाह सलमान अमेरिका की फौजी मदद के बगैर 2 हफ्तों तक भी नहीं टिक सकते। उन्होंने सऊदी अरब को उसकी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका को पैसा देने की बात कही। सऊदी अरब ने अब तक ट्रंप के इस बयान पर कोई तबसरा नहीं किया है। इस्राएली मीडिया में कहा गया कि हुकूमत ने यरूशलेम या अल-कुद्स में आलमी इमदादी इदारे के ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। इंसानी हकूक की तंजीमों ने इसराइल के इस फैसले को फलस्तीनी रेफ्यूजियों के हक पर हमला करार दिया। इसराइल के चैनल 2 ने बताया कि बलदी ओहदेदारों ने रेफ्यूजियों के लिए काम करने वाले UN इदारे की सरगर्मियों को बंद करने का फैसला किया है। इनमें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स और दूसरे इदारे शामिल हैं जहां पर वो काम करते थे। अमेरिका ने हाल ही में इस इदारे के लिए माली मदद रोकने का ऐलान किया था। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से एक बार फिर करप्शन के केस के सिलसिले में पुलिस ने पूछताछ की। टेलीविजन फुटेजेस पर देखा जा सकता है कि तहकीकाती ओहदेदार यरूशलेम में नेतन्याहू के घर में दाखिल हुए। सरकारी रेडियो पर भी इस बात की तस्दीक की गई। नेतन्याहू से 12वीं बार इस तरह की पूछताछ की गई है।
इंडोनेशिया के जलजले और सुनामी में मरने वालों की तादाद तकरीबन 1600 हो गई है। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं जिनमें कई मुल्क हिस्सा ले रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट ने कम से कम 1571 लोगों के मरने की तस्दीक की। बताया गया कि 70,000 घर तबाह हुए हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा है। 28 सितंबर को इंडोनेशिया के एक जजीरे सुलावेसी में 7.5 शिद्दत का एक ताकतवर जलजला आया था, जिसके बाद सुनामी आ गई। ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि अभी कोई 1000 लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। सुनामी और जलजले से बुरी तरह मुतासरा पालू टाउन में बिजली बहाल कर दी गई है। कई इलाकों में अभी बदतरीन तबाही के नज़ारे देखे जा सकते हैं। इस सानह से 6 लाख बच्चे मुतासर हुए हैं। इस दौरान मुतासरा इलाकों में लूटमार का बाजार गर्म है। ऐसे वाक़यात के सिलसिले में कम से कम 92 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इंडोनेशिया के सिपाहियों को हुक्म दिया गया है कि वो लूटमार मचाने वालों को गोली मार दें। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 कारकुनों को गोली मार दी गई और दिल्ली हाई कोर्ट ने सोहेब इलियासी को बीवी के कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। आईएस के चुंगल से फरार यजीदी लड़की नादिया मुराद और रेप विक्टिम्स का इलाज करने वाले कांगो के डॉक्टर को अमन का नोबेल इनाम। नादिया मुराद हजारों यजीदियों के कत्लेआम की गवाह। आईएस मिलिटेंट्स ने कई बार बेचा खरीदा। रिहाई के बाद दुनिया भर में ज्यादती का शिकार लड़कियों के लिए काम किया। हिंदुस्तान रशिया से $5 बिलियन का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। अमेरिका की धमकियां नजरअंदाज। मोदी और पुतिन की मौजूदगी में समझौते पर दस्तखत। मोदी और पुतिन ने आलमी सूरत हाल पर बातचीत की। हिंदुस्तान अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद ईरान से तेल खरीदेगा। ट्रंप बार बार सऊदियों की बेइज्जती कर रहे हैं। अमेरिकी सदर के बयान पर ईरान का तबसरा। कहा मजबूत मिडिल ईस्ट के लिए रियाद के साथ मिलकर काम करने तैयार हैं। सऊदी अरब की कंपनी आरामको पाकिस्तान के गवादर में ऑयल रिफाइनरी बनाएगी। मंसूबे को इस्लामाबाद की मंजूरी। रोजाना 5 लाख बैरल तेल निकालने का मंसूबा। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को करप्शन के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। डॉलर के मुकाबले में रुपया 74 के निशान को पार कर गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट। हिंदुस्तान के पहाड़ जैसे स्कोर के जवाब में वेस्टइंडीज ने 94 पर 6 विकेट खो दिए। कोहली और जडेजा की सेंचुरियां। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ बलूचिस्तान सूबे में एक ऑयल रिफाइनरी के सिलसिले में काम करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस रिफाइनरी से रोजाना 5 लाख बैरल तेल निकालने का मंसूबा बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट की मालियत 8 से 9 बिलियन डॉलर बताई गई है। ये ऑयल रिफाइनरी गवादर में कायम की जाएगी। गवादर बहरे अरब या अरेबियन सी का एक साहिली शहर है जहां चाइना एक डीप सी पोर्ट बना रहा है। यह मंसूबा सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। वजीर पेट्रोलियम गौहर सरवर खान ने बताया कि सऊदी अरब की ऑयल कंपनी आरामको के साथ मिलकर यह रिफाइनरी बनाई जाएगी। सऊदी अरब का एक डेलीगेशन इस सिलसिले में बातचीत के लिए जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करेगा। हाल ही में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया था।
पाकिस्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के भाई और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें करप्शन के केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, जिसका ताल्लुक आशियाना हाउसिंग स्कीम से है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पंजाब सूबे के चीफ मिनिस्टर रहे। उनकी गिरफ्तारी के लिए कौमी असम्बली के स्पीकर से इजाज़त ली गई। साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब को पाकिस्तान के एंटी करप्शन इदारे नैब ने पूछताछ के लिए बुलाया था और उन्हें पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया। उन्हें हफ्ते को अदालत में पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ को लाहौर में गिरफ्तार किया गया। इस दौरान लाहौर शहर में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के बीच झड़पें हुई, जिनमें कम से कम 6 लोग जख्मी हुए। हिंदुस्तान ने रशिया के साथ फौजी ताल्लुकात को एक नई बुलंदी पर पहुंचाते हुए S-400 मिसाइल शील्ड सिस्टम हासिल करने के लिए एक समझौता किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर व्लादिमीर पुतिन के बीच दिल्ली में मुलाकात के मौके पर इस समझौते पर दस्तखत किए गए। पुतिन ने 19वीं इंडिया रशिया सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए 2 दिन का दौरा किया। अमेरिका ने धमकी दी थी कि अगर हिंदुस्तान रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम हासिल करेगा तो उस पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। अमेरिका ने रशिया से हथियार खरीदने वाले मुल्कों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। मॉस्को हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाला मुल्क है। दोनों मुल्कों के बीच इस मौके पर कई दूसरे समझौतों पर भी दस्तखत किए गए, जिनका ताल्लुक रेलवेज, स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी से है। पुतिन के दौरे के दौरान जुमला 8 समझौतों पर दस्तखत किए गए। नरेंद्र मोदी ने रशिया के साथ हिंदुस्तान के खुसूसी ताल्लुकात का जिक्र किया। समझौतों पर दस्तखत के बाद पुतिन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि रशिया के साथ हमारे फौजी रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। हिंदुस्तान रशिया के साथ ताल्लुकात को काफी अहमियत देता है। रशिया हमेशा हिंदुस्तान की तरक्की की दास्तान से जुड़ा रहा। उन्होंने कहा कि अलग अलग शोबों और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हिंदुस्तान और रशिया के बीच ताउन जारी रहेगा। मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई और दूसरे शोबों में ताउन से इत्तेफाक किया है, जिनमें क्लाइमेट चेंज भी शामिल है। इसके अलावा कई फोरम्स का मोदी ने हवाला दिया जहां पर दोनों मुल्क मिलकर काम कर रहे हैं। इनमें ब्रिक्स, आसियान, G20 और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। मोदी ने यह भी कहा कि हमने आलमी इदारों में ताउन और तालमेल के साथ काम करने से इत्तेफाक किया है। पुतिन ने मोदी के ख्यालात से इत्तेफाक करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में ताउन करने से इत्तेफाक किया है। मोदी ने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान और रशिया दुनिया में अमन के लिए काम कर रहे हैं और दोनों के दरमियान ऐसे ताल्लुकात हैं जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। हिंदुस्तान पर अमरीकी पाबंदियों के अंदेशों के बीच पुतिन ने कहा कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म को सीरिया की सूरत हाल के बारे में बताया। हमने ईरान डील से बाहर निकलने के अमरीका के फैसले से पैदा सूरत हाल के बारे में भी बातचीत की। अमरीका ने कहा है कि वो नवंबर के महीने से ईरान से तेल खरीदने वाले मुल्कों पर पाबंदियां लगाएगा। हिंदुस्तान में तेल की ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा ईरान से पूरा हो रहा है। ईरान के खिलाफ पाबंदियों की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसका असर हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। रशिया के सदर ने मोदी को अगले साल मॉस्को के दौरे की दावत दी। बाद में पुतिन ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने बासलाहियत बच्चों के एक ग्रुप से भी बातचीत की और एक बिजनेस फोरम से खिताब किया। हिंदुस्तान और रशिया के बीच S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए जो समझौता हुआ है उसकी मालियत $5 बिलियन है। दोनों मुल्कों ने रेलवेज के बारे में भी एक अहम समझौता किया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान नवंबर में ईरान से 9 मिलियन बैरल तेल खरीदेगा। ऑयल इंडस्ट्री के ओहदेदारों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर को यह बात बताई। हिंदुस्तान के लिए अमेरिका का ऑयल एक्सपोर्ट पिछले महीने घटकर 84,000 बैरल हो गया। इस तरह जून के मुकाबले में इस एक्सपोर्ट में 75% की कमी आई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन हालात में हिंदुस्तान के पास पाबंदियों के बावजूद ईरान की तरफ देखने के सिवा कोई चारा नहीं है। रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में पहली मर्तबा 74 के निशान को पार कर गई। बताया गया कि मौशी सूरत हाल से निमटने के लिए RBI ने ऐलान किया कि वो अपनी पॉलिसी शरहों को तब्दील नहीं करेगा। जुमे को डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 74.13 हो गई। RBI ने रेपो रेट 6.5% पर और रिवर्स रेपो रेट को 6.25% पर बरकरार रखा। इस दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी 500 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट आई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी गिरावट का रुझान देखा गया।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 कारकुनों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस वाक़े के लिए मिलिटेंट्स पर शुबा किया जा रहा है। यह वाक़या दिन के तकरीबन 11:30 बजे पेश आया। इस हमले में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक तीसरा कारकुन भी जख्मी हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने इस वाक़े की मजम्मत की। मारे गए कारकुनों की पहचान मुश्ताक अहमद वानी और नज़ीर अहमद भट्ट की हैसियत से की गई है। ये लोग रुकन असम्बली शमीमा फिरदौस के करीबी बताए जाते हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर और PDP लीडर महबूबा मुफ्ती ने भी इस वाक़े की मजम्मत की। क्रिकेट। हिंदुस्तान ने राजकोट में खेले जाने वाले पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन मैच पर शिकंजा मजबूत कर दिया है और एक बदतरीन शिकस्त मेहमान टीम का इंतजार करती नजर आ रही है। हिंदुस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 9 विकेट पर 649 पर डिक्लेयर की, जिसके बाद वेस्टइंडीज की टीम के खिलाड़ी धड़ाधड़ आउट होते रहे। जिस वक्त खेल खत्म हुआ वेस्टइंडीज का स्कोर 6 विकेट पर 94 था। हिंदुस्तान के इस मुजाहरे का सेहरा विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के सर जाता है। सबसे पहले ओपनर पृथ्वी शॉ ने अपने पहले ही मैच में सेंचुरी बनाई, जिसके बाद कप्तान विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने भी सेंचुरियां ठोक दी। कोहली 139 पर आउट हुए जबकि जडेजा 100 पर नॉट आउट रहे। हिंदुस्तान ने चाय के वक्फे पर अपनी पहली इनिंग्स डिक्लेयर की, जिसके बाद वेस्ट इंडीज ने 29 ओवर्स बैटिंग की और अपने 6 खिलाड़ियों को मामूली स्कोर पर खो दिया। जडेजा की ये पहली टेस्ट सेंचुरी है। फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी के सामने वेस्ट इंडीज के बैट्समैन काफी परेशान हो गए, जिसके बाद स्पिनर्स ने भी मिडिल ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। वेस्ट इंडीज की टीम अब भी 555 रन पीछे। मोहम्मद शमी ने 4 ओवर्स का खतरनाक स्पेल किया और सिर्फ 5 रन देते हुए कैप्टन क्रेग ब्रैथवेट और कैरन पावेल को चलता कर दिया। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने एक एक विकेट हासिल की। हिंदुस्तान उम्मीद कर रहा है कि उसे तीसरे दिन पहली इनिंग्स में 500 से ज्यादा रन की लीड हासिल होगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। IS के चुंगल से फरार यजीदी लड़की नादिया मुराद और रेप विक्टिम्स का इलाज करने वाले कॉन्गो के डॉक्टर को अमन का नोबेल इनाम। नादिया मुराद हजारों यजीदियों के कत्लेआम की गवाह। IS मिलिटेंट्स ने कई बार बेचा खरीदा। रिहाई के बाद दुनिया भर में ज्यादती का शिकार लड़कियों के लिए काम किया। हिंदुस्तान रशिया से $5 बिलियन का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। अमेरिका की धमकियां नजरअंदाज। मोदी और पुतिन की मौजूदगी में समझौते पर दस्तखत। मोदी और पुतिन ने आलमी सूरत हाल पर बातचीत की। हिंदुस्तान अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद ईरान से तेल खरीदेगा। ट्रंप बार बार सऊदियों की बेइज्जती कर रहे हैं। अमेरिकी सदर के बयान पर ईरान का तबसरा, कहा मजबूत मिडिल ईस्ट के लिए रियाद के साथ मिलकर काम करने तैयार हैं। सऊदी अरब की कंपनी आरामको पाकिस्तान के गवादर में ऑयल रिफाइनरी बनाएगी। मंसूबे को इस्लामाबाद की मंजूरी। रोजाना 5 लाख बैरल तेल निकालने का मंसूबा। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को करप्शन के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। डॉलर के मुकाबले में रुपया 74 के निशान को पार कर गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट। हिंदुस्तान के पहाड़ जैसे स्कोर के जवाब में वेस्टइंडीज ने 94 पर 6 विकेट खो दिए। कोहली और जडेजा की सेंचुरियां। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।